Hello dear students, today is our next lecture of capacitor. तो we are doing capacitor arrangement. तो प्रीवियस क्लास मैंने क्वेश्चंस करवा दिया था, ऑलमोस्ट सारे टाइप्स करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, we have a parallel plate capacitor suppose plate A, this one is plate A and this one is plate B. Suppose plate A is connected with positive terminal and here potential is V, while B is connected with the negative terminal. Here we have considered potential to be 0. Okay, and distance between them is defined. This distance is suppose 7D. It is the distance between the plates of capacitors. Okay, now a dielectric slab and a conducting slab has been introduced between the plates of the capacitor C. This one is a dielectric slab having dielectric constant K, and the second one is a conducting slab. This one is a conducting slab. We have conducting slab. Okay, now this distance is suppose D. This distance is also D. It is D. It is also D. Now you have to draw Vx potential position and electric field position graph for the given arrangement. So for this given arrangement we have to draw potential position graph and the electric field position graph. Like plate A का नीचे हमने एक line लिया, it is suppose the potential line, it is V and it is X. So you have to draw the Vx graph as well as the Ex graph. तो यहाँ Vx graph draw करना है, फर्स्ट पार्ट में Vx ग्राफ एंड सेकेंड पार्ट में यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन ग्राफ. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी है. मैं हिंट क्वेश्चन का आपको दे रहा हूँ. ठीक है, अब जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हो तो पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो हिंट में पोटेंशियल goes on decreasing as we move from A to B. प्लेट A से प्लेट B की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल goes on decreasing. Okay, the first hint. Second hint, potential inside the dielectric is constant. तो potential inside the conductor, not dielectric, potential inside the conductor is constant, as electric field inside the conductor is always equal to 0. या आप ये लिख सकते हैं, it implies that electric field inside the conductor will be 0. You have to draw the Vx graph and the Ex graph. तो यहाँ पहले आपको डी डिस्टेंस तक लेना है, देन वी कम टू 2D और इधर जो है लास्ट में 2D है, तो 2D एंड 2D 4D वी हैव. तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, 3D. तो इट इज 5D, 6D and 7D. So you have to draw this graph. Okay,
Now we come to the next question. ये क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. इसमें एक टर्म आएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि डायलेक्ट्रिक के अंदर कोई करंट नहीं होता है जब तक कि डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो जाए, और डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद जो करंट फ्लो होता है दैट करंट इज़ कॉल्ड लीकेज करंट. तो चूँकि मैंने अभी करंट चैप्टर करवाया नहीं है, तो जब चैप्टर करंट करवाऊँगा तो उस टाइम जो है हम डिस्कस करेंगे साथ में ही कि जो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लीकेज करंट. ठीक है, तो लीकेज करंट उस टाइम हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और अभी कैपेसिटर के साथ मैं रजिस्टर सर्किट नहीं करवा रहा हूँ, बाद में कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट एक साथ करवाएंगे. एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. बहुत बेसिक सर्किट में दे रहा हूँ. This point is B and this point is A. This capacitance is C, 2C, 3C, 4C, C and 2C. ओके, तो ये हमारा अरेंजमेंट है. इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट पार्ट. Equivalent capacitance again between A and B we have to get. ये रजिस्टर सर्किट भी हो सकता था. एंड कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सपोज C. ये सबका कैपेसिटेंस हमने C ही लिया है. You have to get equivalent capacitance between A and B. Next question is question number 4. ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेसिक क्वेश्चन है. You have to get equivalent resistance between points P and Q. और सिमिलर हमारा रजिस्टर सर्किट जैसे है कैपेसिटर सर्किट भी हो सकता था. ओके, this point is P and this point is Q. Resistance of each resistor is suppose R. ये जितने भी टाइप्स करवाए हैं उतने ही टाइप्स पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं. ओके, अभी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, किरचॉफ्स लॉ, नोडल लॉ, लूप लॉ, ये सब पे हम कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here you have to get resistance between P and Q. Okay,
नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और थोड़ा सोच समझ के सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर। ओके, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है और रजिस्टर का भी होता है, तो वो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन। We have given a supply of 30 volt here, your potential is 0 volt. Suppose this one is 3 microfarad, this one is 6 microfarad, and this one is 2 microfarad, and it is 1 microfarad. This point is suppose P and this point is Q. We have to find potential difference between points P and Q. P and Q का बीच में we have to get the value of potential difference. Okay. Now we come to one more question. It was question number 5. Now we come to the question number 6. अभी और भी काफ़ी क्वेश्चंस करवाने हैं, बट इलेक्ट्रिकल सर्किट का बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, एस सी वर्मा के आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल्स नहीं हो, सिंगल सेल वाले। ठीक है, और जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड नहीं हो, सिर्फ वही क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जिस क्वेश्चन में कैपेसिटर एंड रजिस्टर है, अभी वो क्वेश्चंस आपको ट्राई नहीं करने हैं। ओके है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और ये सिमिलर क्वेश्चन एससीबी में गिवन है। So it is a plate. This one is a rectangular plate and length of plate is L and width is B. Length और width अगर defined है तो it implies that area of the plate is what? LB. और ऊपर हमारा ये सपोज नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऊपर हमारा एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक दिस। और जो अपर सरफेस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये नेगेटिव है, एंड दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। Suppose if this area is A, this area is 1/3 A by 3, it is also A by 3 and it is also what? A by 3. This distance is given D, this distance is given 2D and this distance is given 3D. Okay, so we have to get capacitance of this capacitor. इस capacitor का capacitance हमें चाहिए। Okay, so we come to the solution. Solution में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो मैंने बताया था अगर प्लेट्स का एरिया डिवाइड हो तो कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो सी कैपेसिटर्स इन पैरेलल इन केस एरिया इज डिवाइडेड। तो सी हियर वी हैव थ्री पार्ट, वन पार्ट इज दिस, द सेकेंड पार्ट इज दिस एंड द थर्ड पार्ट इज दिस। तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं अरेंजमेंट को। से
We can take the arrangement like this. वन कैपेसिटर इज दिस, ये A/3 एरिया वाला एक कैपेसिटर हमने ले लिया. दिस वन इज वन कैपेसिटर. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज व्हाट, D. द सेकेंड वन is this distance we have 2D, again area is A/3, and the third capacitor we have this. Now the distance is 3D and area is again A/3. Now see, these capacitors are in parallel. Three capacitors we have. So suppose capacitance of the first capacitor is C1, for the second it is C2, and for the third it is C3. So what is the value of C1? Area A/3 epsilon naught by D, that is A epsilon naught by 3D. What about C2? It is A/3 epsilon naught. अब distance between the plates क्या है? 2D. The result we have A epsilon naught by 60. And similarly C3, area is A/3 epsilon naught. Similar question SCB में given है, वो आप ट्राई कर सकते हैं. तो it is what, A epsilon naught by 90. Now these are in parallel. So what is the equivalent capacitance? The equivalent capacitance is equal to C1 plus C2 plus C3. Now putting the values, A epsilon naught by 3D is taken out. The result we have 1 plus 1 by 2 and plus 1 by 3. आप इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हो एंड पुट A is equal to lastly LB, और लास्टली A की जगह you will put what, LB. You will get the final result. Okay. एक क्वेश्चन में और होमवर्क के लिए दे रहा हूं. This one is the square plate of side L. Okay. ये हमारा एक कर्व है and this curve is y is equal to suppose x square plus d. This distance we have d, means this one is the origin of coordinate system. This point is the origin, this coordinate is x and this coordinate we have what, y. ठीक है. ये भी स्क्वायर प्लेट है, लेकिन स्क्वायर प्लेट को जो कर्व हमने दिया है, दिस प्लेट इज लाइक this side is L, this plate is like this. Okay, L, this side is also L. हाँ, ये कर्व मैंने डिफाइन किया, दैट कर्व इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस डी. तो वी हैव टू गेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन कैपेसिटर. यू हैव टू गेट equivalent capacitance between P and Q. Okay. Next question. This one is a spring of a spring constant K. K is what here? The spring constant. Okay. And this one is a plate it is a plate of area A. Area of this plate is given A, and this one is a fixed plate. Distance between the plates is D. This one is positive terminal and this one is negative terminal. Potential difference supplied जो है, that is given V. Your potential is what, 0. So you have to get
the suppose this plate is positively charged and this one is negatively charged, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, attraction होगा. This plate is fixed and the upper plate is free to move. Upper plate is free to move. Find elongation in the spring. We have to find, question है elongation in the spring. इस स्प्रिंग के अंदर हमें elongation चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, जितना मैंने करवाया है सही ढंग से उसको ट्राई कीजिए आप, ठीक है. और कॉन्सेप्ट्स जो है पहले बताया मैंने, आगे करवाऊंगा ही, ठीक है. बट क्वेश्चंस जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिए. क्वेश्चंस क्लियर, क्वेश्चंस करने से ही जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना है. ओके, क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं. Next question is, a soap bubble of radius r and thickness t is charged to a potential v. पोटेंशियल v से इसको हमने चार्ज किया. जब आप चार्ज देंगे तो म्यूचुअल रिपल्सन होगा. म्यूचुअल रिपल्सन के कारण क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, मैंने बताया था. द बबल bursts and falls as a spherical drop. You have to get, find electric potential of the drop. So you have to get the electric potential of the drop. बेसिक क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल है, ये ध्यान रखिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. This one is K, this one is 2K, and this one is 3K. ये प्लेट्स हैं. एरिया ऑफ ईच प्लेट इज गिवन A and distance between the consecutive parallel plates is given D. और इन प्लेट्स के बीच में हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट किया. ओके, एंड इन दो प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया. Suppose this point is P and this point is Q. You have to get the capacitance between P and Q, and also we have to get the equivalent dielectric constant of the
arrangement. K equivalent we have to get. ओके, तो ये क्वेश्चन है. तो विल स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी. और करेंट इलेक्ट्रिसिटी आपका ऑन बोर्ड लेक्चर अब से स्टार्ट होगा, ठीक है. और करेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इसमें जो टेक्स्ट वाले पार्ट है मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि क्या क्या जो है आपका एनसीईआरटी से जो एकेडमिक्स का पार्ट है एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पार्ट करना है ये डिस्कस करेंगे. और मैं इसके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपको भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में या एडोबी लिंक जो है चला जाएगा आपके पास. अब इस क्वेश्चन चैप्टर को आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए. एंड दिस चैप्टर इज दिस ग्रेविटेशन चैप्टर इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से आप कोरिलेट करते हैं. तो जितने भी फॉर्मूले हैं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कोरिलेशन कैसे करना है. फिर एक क्लास या 2 क्लास में लूँगा तो ग्रेविटेशन विल बी कंप्लीटेड, बट इट विल बी आफ्टर द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली. ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है मैं 2 क्लास इट विल बी ऑफ ग्रेविटेशन, जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से रिवाइज कर चुके होंगे. एंड देन वी विल डूइंग एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है. फिजिक्स का जो आपका 12th में इट इज़ द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मोर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसलिए पहले ही करवा दूंगा. उसके बाद जो है फिर हम मैग्नेटिक्स वाले पार्ट पे चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट पे, ठीक है. ओके, थैंक यू.